Dear students, today we are going to study about social science, class 7, civics, chapter 5, Women Change the World. In the previous video, we talked about the change of the world through a woman, and now we discuss about in this video. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. Sometimes these come in the form of demand from adults. At other times, they can just be victims of unfair tests teasing by our own friends. Boys are pressured to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that in read about how boys at an early age are encouraged not to carry in front of others. पिछले वीडियो के माध्यम से हमने रूढ़िवादियों को कैसे तोड़ा जाए, ब्रेक द स्टीरियोटाइप, and it is the important to understand that we live in the society. और यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। Xavier, the changes in of learning, we discuss a short story of this. Xavier was happy with the result of his class 10 board exam. How his marks in science and math were not high, he had done well in his favorite subject, history and languages. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. यहाँ पर स्टोरी दी गई है इसमें स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, इसमें एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल देखकर खुश था। यद्यपि
विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय हिस्ट्री यानी इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। माय goodness, Xavier, you have managed only 65% in math. Your marks in physics are low too. हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% नंबर लाए हो, जबकि भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। I know, Mama, but it's okay because I do not want to take math or science. I want to study history. मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. क्यों? इतिहास तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। But I don't like math or science. लेकिन मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। We sensible son, take math and you can study computer side by side. The job market for computers is very good. समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। लर्निंग फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए सीखना। गोइंग टू स्कूल is an extremely important part of our life. स्कूल जाना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। As more and more children enter school every year, और जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, we begin to think that it is the normal for all children to go to school. तो हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना साधारण बात है। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learn the work their families or elders did. For girls, the situation was worse.
In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skill like pottery, weaving, and craft were taught. आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना यानी प्राचीन समय में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हार, बुनकरी यानी वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पोट्री ट्रेड, वुमेन कलेक्टेड द मड and prepared the earth for the pot. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learned reading or writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition of educating girls even then. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए
संघर्ष किया। रमाबाई 1858-1922 shown above with her daughter। रमाबाई जिन्होंने 1858 से 1922 तक जो अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की एक योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। She never went to school but learned to read and write from her parents। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit are remarkable। क्योंकि उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। A remarkable achievement, as women then were not allowed such knowledge। जो उस समय की औरतों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और औरतों को तब ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। She went on to set up a mission in Khergaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent। They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not easily taught to girls even today। The printing press can be seen in the picture on the top left corner। Ramabai mission is still active today। इसी तरह से औरतों को यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेरगांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़कियों से चीज़ें बनाने, छापाखाना यानी प्रेस चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थीं, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। रमाबाई का मिशन इस तरह से प्राचीन समय से चला आ रहा है और वो आज भी मिशन सक्रिय है।